After a lot of discussion, debates, and talks, the IPO of LIC is finally going to hit the market on May 4th. Now, whether this hit is going to be a super hit or a crash hit is what we'll try to understand and study in today's video. Now, ये वीडियो देखने के बाद you will not only have an understanding about the business of LIC, but you would also have some idea about how the life insurance industry works, what are some of its important metrics, and what are some of its important key ratios. My name is V. Trivedi, and without any further ado, let's jump straight into it. So, कोई भी कंपनी को समझने से पहले it is very important to understand the industry in which it operates. So, India is the 10th largest life insurance market in the world and 5th largest in Asia. अब इंडिया का जो टोटल लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट साइज है इट इज़ क्लोज टू 6.2 लाख करोड़ इन FY21. इट वाज 5.7 लाख करोड़ इन FY20. अब ये जो पूरा मार्केट शेयर है ऑफ 6.2 लाख करोड़, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 61% मार्केट शेयर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है. दैट इज़ क्लोज टू 2/3 ऑफ द मार्केट शेयर. नाउ यू वुड हैव दिस क्वेश्चन दैट हाउ हैज़ LIC been able to achieve such a big market share? LIC was formed in 1956. So from 1956 till 2000, LIC had no competition. So for 44 years, LIC was the only insurance company in India that was selling life insurance. So it is like कि अगर आप रेस में अकेले दौड़ोगे तो it is bound that you are going to win, और ऐसा ही कुछ ये कंपनी के साथ हुआ. So the fact that they were ahead 44 years of their next competitor, they were able to achieve such a big market size. पिछले 5 सालों में the industry's total premium had been growing at 11% CAGR. New business premium की बात करें, so in the last 5 years, the new business premium has been growing at a CAGR of 15%. Futuristic predictions की बात करें, so ये जो market है, it is expected to grow at 14 to 15% in the next 5 years. अभी आपने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी होगी कि पेनिट्रेशन जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का है वो इंडिया में काफ़ी कम है. नाउ क्या ये सही बात है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो आपको ये स्क्रीन में एक ग्राफ दिख रहा होगा. हियर दे हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रीमियम टू GDP ऑफ वेरियस कंपनीज ऑफ वेरियस कंट्रीज. सो इंडिया का जो पेनिट्रेशन है दैट इज़ प्रीमियम टू GDP, इट इज़ एट अराउंड 3.2%. USA का इज़ एट 3%, जर्मनी का इट इज़ एट 2.8%. सो आप ये ग्राफ से देख सकते हैं कि काफ़ी कंट्रीज़ का प्रीमियम टू GDP हमसे ज़्यादा है, काफ़ी कंट्रीज़ का प्रीमियम टू GDP हमसे कम है. बट दिस इज़ एज पर अस नॉट अ राइट वे टू कैलकुलेट द पेनिट्रेशन और जज अ पेनिट्रेशन ऑफ अ कंट्री. पेनिट्रेशन वी कैन ओनली जज if we compare the country's penetration with those countries जिसका financial condition हमारे लगभग है. So if we look at this second graph, that is the premium per capita of different countries. So यहाँ हमने क्या किया है, we are comparing the premium capita of countries with those countries जिसका GDP per capita is below 6,000 USD डॉलर. सो बेसिकली ये सारी वो कंट्रीज़ है जिसका फिनेंशियल कंडीशन इज़ सिमिलर टू अस. अगर हम ये देखें सो इंडिया का प्रीमियम पर कैपिटा इज़ एक्चुअली वे अहेड देन मोस्ट कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर इंडोनेशिया. सो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इंडिया का पेनिट्रेशन एक्चुअली इतना कम है नहीं जितना हमें रिपोर्ट्स में सुनने को या पढ़ने को मिलता है. बट इंडिया में द बिगर प्रॉब्लम इज़ ऑफ द प्रोटेक्शन गैप. सो इंडिया में जो प्रोटेक्शन गैप है इट इज़ एज हाई एज 83%. अगर हम ये फिगर को कंपेयर करें विद इंडोनेशिया, उसका 76% है, ऑस्ट्रेलिया का 54% है, हांगकांग का 41% है. सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये प्रोटेक्शन गैप क्या है. सो व्हाट इज़ दिस 83% ऑफ प्रोटेक्शन गैप जो इंडिया का है? सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, लेट्स टेक माई ओन एग्जाम्पल.
if as per my earning, as per my standard of living and as per my expenses, I require a life cover of 100 rupees, कि मेरे मरने के बाद that 100 rupee would be sufficient for my parents to live the same standard of living which they are living currently. So I should ideally take a life cover of 100 rupee, but let's assume कि मैंने लिया life cover of only 17 rupee. So the protection gap is basically the difference between what I should have ideally taken and what life cover I have took. So 100 minus 17 is 83, and that is what the protection gap is. In more simpler words, higher the protection gap, less life covered you are. और इंडिया में लोगों के पास लाइफ कवर नहीं है. This is what this data explains to us. अब सेक्टर की बात तो हो गई. Now let us try to understand, get some brief information about LIC. So as I've mentioned before, LIC was incorporated in 1956 and up to 2000 it was the only life insurance provider in India. So they have a market experience of close to 65 years. Now LIC was formed in 1956 by merging and nationalizing 245 private life insurance companies. LIC has a massive market share. So अगर हम total premium की बात करें, so LIC has a market share of 61.6%. अगर हम new business premium की बात करें, so LIC has a market share of 61.4%. अगर हम number of policies issued की बात करें, so it has a market share of 71.8%. मतलब इंडिया में अगर 100 policies इंश्योरेंस सेक्टर बेच रहे हैं, so उसमें से 71.8% LIC बेच रहा है. और LIC का जो डिस्ट्रीब्यूशन मोड है, सो वो मोस्ट पॉलिसीज़ अपनी थ्रू इंडिविजुअल एजेंट्स बेचता है. सो LIC का जो पूरा सेलिंग है उसमें से 94% आर सोल्ड थ्रू इंडिविजुअल एजेंट्स. LIC के पास इंडिविजुअल एजेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क है. सो दे हैव क्लोज टू 13.3 लाख इंडिविजुअल एजेंट्स. ये बहुत बड़ा अमाउंट है. कितना बड़ा अमाउंट है? जो LIC का इंडिविजुअल एजेंट्स का नेटवर्क है, it accounts for 55% of all the agents in India. So अगर पूरे इंडिया में 100 एजेंट्स हैं जो इंश्योरेंस बेचते हैं, 55 would belong to LIC. This is how big their agency network is. So थोड़ी बहुत कंपनी की बात भी कर ली. अब now let's try to understand कि ये कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या है. So सबसे फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इज़ द ट्रस्टेड ब्रांड नेम. हमने ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस जो एज अ सेक्टर है, इसमें ट्रस्ट एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. वाई? क्योंकि ये सेक्टर में हम 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए प्रीमियम देते हैं एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद मिलने वाला है. सो हमें ये डाउट होगा कि क्या ये कंपनी जिसको मैं इतने मेरे प्रीमियम दे रहा हूँ, क्या वो 20 साल के बाद सर्वाइव कर रही है या कर पाएगी? जो मैं इसको प्रीमियम दे रहा हूँ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्या वो मेरा प्रीमियम अच्छे से यूज़ करेगी? क्या मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को लाइफ कवर मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो ये सारे क्वेश्चंस एक पॉलिसी बायर के दिमाग में होते हैं, और इसके लिए एक अच्छा ट्रस्ट, एक अच्छा ब्रांड नेम बहुत ज़रूरी है होना, ये पर्टिकुलरली ये सेक्टर में. और LIC का ब्रांड नेम इज़ वन सच विच इज़ बेस्ट इन क्लास. सो द फैक्ट कि LIC 1956 से 2000 तक वो अकेली ही ये कंपनी थी जो इंश्योरेंस बेचती थी, इसके लिए LIC का नाम जो है, LIC का ब्रांड, इट बिकेम सिनोनिम्स विथ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया. सो लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, ये ऐसी वाली बात हो गई. और जो LIC का जो ब्रांड है, इट वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड इन 2021. ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि LIC इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट. सो इंसॉल्वेंसी का रिस्क कि ये कंपनी डूब जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं हद तक नहीं आ पाता लोगों के दिमाग में. दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इज़ के द ग्रोइंग मार्केट साइज एंड ह्यूज प्रोटेक्शन गैप. ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझाया था, बट द जिस्ट ऑफ दिस इज़ दैट इंश्योरेंस सेक्टर मॉडरेटली पेनिट्रेटेड है, सो वो वहाँ तरफ से ग्रो हो सकता है. प्रोटेक्शन गैप जो है, लाइफ कवर लोगों के पास बहुत कम है, सो दैट इज़ द सेकेंड एक्सेस फॉर दिस इंडस्ट्री टू ग्रो.
थर्डली द इंश्योरेंस जो प्रीमियम है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR of 14 to 15% in the next 5 years. Also with increasing financial literacy, लोगों का अवेयरनेस रिगार्डिंग के लाइफ कवर होना चाहिए, प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ होनी चाहिए पोस्ट कोविड-19, ये सारे फैक्टर्स हमें ये हमें कन्वे करती है कि ये इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी आने वाला है. एंड द फैक्ट दैट LIC इज़ अ मार्केट लीडर, इंडस्ट्री ग्रो होगी तो LIC भी साथ में ग्रो होगी. थर्ड स्ट्रेंथ फॉर LIC इज़ द पैन इंडिया प्रेजेंस. अब LIC अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है. एक हमने बात की इंडिविजुअल एजेंट्स की, दूसरे हमने बात की बैंक अश्योरेंस की, तीसरी इट इज़ ऑल्टरनेट चैनल्स जो कि होते हैं ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एजेंट्स, और फोर्थली इट इज़ टू डायरेक्ट चैनल, दैट इज़ उनके वेबसाइट के थ्रू और उनके ऑफिस के थ्रू. सो एजेंसी तो हमने बात की कि कितना बड़ा उनका एजेंसी नेटवर्क है. They also have a partnership with 70 banks, and they get access to 51,633 branches. And also they have offices in 91% of the district in India. So a big agency network, access to 52,000 branches, or they have offices which covers 91% of the district in India. These three factors conveys one thing to us कि ये कंपनी का प्रेजेंस इज पैन इंडिया. फोर्थ एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो LIC के पास है, इट इज़ द क्रॉस साइक्लिकल प्रोडक्ट मिक्स. हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में आगे भी बात करेंगे, बट LIC अनलाइक इट्स अदर प्राइवेट कॉम्पिटिटर, वो यूलिप जो एक प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम बेचता है. अब यूलिप कम बेचने का फ़ायदा, वन ऑफ द फ़ायदा इज़ कि यूलिप का जो प्रोडक्ट है इट इज़ वेरी साइक्लिकल इन नेचर, क्योंकि यूलिप लिंक्ड होता है इक्विटी मार्केट से. सो जो सिनेरियो में इक्विटी मार्केट्स बढ़ेगी, यूलिप का डिमांड बढ़ेगा. अगर इक्विटी मार्केट्स डाउन है तो यूलिप का डिमांड डाउन होगा. सो दिस मेक्स देयर प्रोडक्ट मिक्स लेस साइक्लिकल इन नेचर एंड मोर स्टैग्नेंट. अब हम बात करते हैं कंपनी के की रिस्क के बारे में. सो वन ऑफ द की रिस्क इज़ देयर लो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन. अब पहली बात तो ये VNB मार्जिन होता क्या है. VNB मार्जिन को आप प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन की तरह भी देख सकते हैं. सो जब मैं कहूँ कि ये कंपनी का VNB मार्जिन 10% का है, इसका मतलब वेरी सिंपली इस कि अगर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 100 रुपीज़ का प्रीमियम मिलता है, सो वो 100 रुपीज़ में से वो 10 रुपये का प्रॉफिट कमाती है. दैट इज़ व्हाट अ VNB मार्जिन ऑफ 10% सेज टू अस. LIC का VNB मार्जिन, as you can see from your screen, is 9.9%, which is way lower than their private peers. So private peers का VNB margin ranges from 23 to 28%. अब इनका VNB margin इतना कम क्यों है? To understand this, हमें इनके प्रोडक्ट मिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है. अब लाइफ इंश्योरेंस में वेरी ब्रॉडली, वेरी ब्रीफली, इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. एक आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्रोडक्ट, देन आता है सेविंग्स प्रोडक्ट, पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स प्रोडक्ट, देन आता है टर्म इंश्योरेंस, एंड देन आता है यूलिप. सो आपको भी इतना समझना है कि जो प्रोटेक्शन, जो टर्म इंश्योरेंस होता है प्रोडक्ट, एंड द नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स प्रोडक्ट, ये जो 2 प्रोडक्ट है इसके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को. और जो पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स है और जो यूलिप है, इसके कंपनीज़ को बहुत कम मार्जिन्स मिलते हैं. सो LIC का मोर देन 95% ऑफ द प्रोडक्ट की जो सेलिंग होती है, डेट इज़ ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स, विच गिव्स देम लो मार्जिन. जो प्रोटेक्शन मिक्स है, जो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है विच गिव्स यू द हाइएस्ट मार्जिन, उसका शेयर LIC का इज़ ओनली 0.94%, वाइल प्राइवेट प्लेयर्स का शेयर इज़ 11 to 20% ऑफ प्रोटेक्शन प्रोडक्ट. सो सिंपली कि वो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं इट इज़ लेस मार्जिन एक्रेटिव, और प्राइवेट प्लेयर्स वो प्रोडक्ट बेचते हैं विच आर मोर मार्जिन एक्रेटिव. इसके वजह से VNB मार्जिन ऑफ LIC इतना कम है कंपेयर टू विट्स प्राइवेट पीयर्स. सेकेंड रिस्क है कि बैंक अश्योरेंस एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इट हैज़ बीन गेनिंग मोमेंटम. अब बैंक अश्योरेंस जो कॉन्सेप्ट है वो पोस्ट 2016 आया था, और प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत जल्दी से बैंक अश्योरेंस को अडॉप्ट कर दिया.
अब ये बैंक अश्योरेंस है क्या? बैंक अश्योरेंस इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो बैंक्स के थ्रू पार्टनरशिप करती है, विच अलाउज देम टू सेल देयर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन बैंक ब्रांचेस. So the share of bank assurance channel rose from 23.8% to 29% in FY21. So private players are increasing their focus on bank assurance channel. Private players, as I've mentioned, they have a relatively higher dependence on bank assurance channel. So on an average, close to 50 to 55% of the policies जो private players बेचते हैं वो थ्रू बैंक अश्योरेंस बेचते हैं. LIC अपने पॉलिसीज थ्रू बैंक अश्योरेंस सिर्फ 2.56% बेचता है. अब द प्रॉब्लम इज दैट कि द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट हैज़ द एबिलिटी टू चैलेंज द मैसिव एजेंसी नेटवर्क ऑफ LIC इज बैंक अश्योरेंस चैनल. नाउ व्हाई डू आई से दिस इज बिकॉज एक एजेंट एक दिन में 10 लोग से 15 लोग से 20 लोग से मिल पाएगा, बट एक ब्रांच कैन गेट एक्सेस टू 100 to 1000 पीपल इन अ गिवन डे. और ऑल्सो जो पीपल ब्रांचेस में आते हैं दे आर पोटेंशियल कस्टमर्स, वो लोग फिनेंशियल प्रोडक्ट्स के रिक्वायरमेंट के लिए ही आते हैं. सो ये रीजंस की वजह से एंड द फैक्ट दैट LIC का बैंक अश्योरेंस डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स हैव कैप्चर्ड द मार्केट शेयर फ्रॉम LIC. द थर्ड रिस्क इज द हाई कॉम्पिटिशन फ्रॉम प्राइवेट peers. Now LIC का market share over the 4 years has constantly been on a declining trend. So in FY19 उनका market share was 66.4%. In FY20 their market share was 66.2%. In FY21 their market share fall down to 64.1%. So हर साल LIC का on an average 1% market share गिर रहा है. वो गिर रहा है against the private peers. So private peers are working are at operating at a better VNB margin than LIC. They have a higher dependence on bank assurance channel, which is a good thing for their distribution. So thus private peers का जो focus है on distribution, on product mix, on digital initiatives are a major threat to LIC's market share. So the fourth risk is of regulatory overhang. हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि essentially LIC is owned by government. अब तक तो 100% गवर्नमेंट के हाथों में था, अभी इट इज़ सेलिंग 3.5%. सो द फैक्ट कि इट इज़ गवर्नमेंट ओन्ड, कहीं ना कहीं उनके डिसीजन मेकिंग आर सोशलिस्ट इन नेचर कंपेयर्ड टू इट्स अदर प्राइवेट peers. We have seen there are plenty of examples where we have seen over the years कि LIC have bailed out, government through LIC have bailed out a lot of companies in the past, be it DBI Bank, be it New India Assurance, be it General Insurance Corporation, or also helping HAL, which is the country's largest country's largest defense public sector, to help them raise funds for their IPO. So क्या पता फ्यूचर में भी गवर्नमेंट LIC को एज अ टूल टू बेल आउट कंपनी यूज़ करे. So no doubt this is good for the country, but as shareholders you don't want your funds to be used to bail out companies which are not efficient. So ये भी एक खतरा, एक रिस्क LIC का है. अभी हम अगर फिनेंशियल्स की बात करें कंपनी की, so as you can see from the screen कि the company's net premium income has increased at a CAGR of 9.30%. कंपनी का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है over 3 years it has been increasing at a CAGR of 9%. So कंपनी का न्यू बिजनेस प्रीमियम इंक्रीज हुआ है over the 3 years at 9% CAGR. इंडस्ट्री had grown at a CAGR of 14 to 15%. मतलब इंडस्ट्री is growing faster than LIC. इसका मतलब सिंपली ये है कि LIC is losing market share against the industry, that is against the private peers. Solvency ratio of the LIC stands at 176%. Now solvency ratio basically it helps us to convey and identify whether the company or the life insurance institution has enough liquidity to pay out claims or to fulfill its policies. So regulatory requirement होती है 150% की. LIC का solvency ratio is at around 176%. So solvency ratio में तो there does not seem to be a very big risk. Now finally the biggest question,
should you subscribe to the IPO of LIC? The growing financial literacy, the growing need for protection products post COVID-19, the growing per capita income, this coupled with the fact that the penetration is still very moderate in India and there is a big protection gap, the industry is bound to grow, and it is expected to grow at a CAGR of 14 to 15% in the next 5 years. Yes, LIC has low VNB margins compared to its private peers. LIC has been losing market share against its private peers. There is a lot they can do with its product mix, with its distribution channels. But the fact is, and the good news is that government knows this. Government knows their weaknesses, and therefore they have priced their IPO at a very attractive valuation. They have come up with a valuation of 1.1 times their EV, their embedded book value. If we compare their valuation with other private peers, the peers have their embedded book value at close to 2 to 4 times. The management of LIC have stated that they will be now trying to improve their VNB margins. They will be trying to sell more protection products and improve their product mix. They would also be focusing on bancassurance as a distribution channel. And if they are able to fulfill all these claims, Life Insurance Corporation of India, LIC, could definitely be a very big game changer in the Indian life insurance space. We recommend our investors to subscribe to the IPO of LIC because we believe that you are actually getting the IPO at almost its book value and the downside risk is very low. If you enjoyed watching this video, please give this video a big thumbs up, subscribe to our YouTube channel, and do comment us down below what are your feedbacks and what new video would you like to see in this channel. Thank you.